Okay, we will start the session. Let me share you the screen. So what we have to study here is scheduling. Scheduling of what? CPU scheduling. Now that is being offered by various algorithms. Okay. So first of all, the term CPU scheduling should be clear to each and every one of us. What is CPU scheduling? Yes. Okay, so see, CPU scheduling is a kind of a process by which you can able to determine that which process will be owning the CPU. Fine, because we have studied that there are multiple processes that wants to be get executed. Fine. So how we will be able to decide that CPU should be allotted to which particular process? So that decision will solely be dependent upon what kind of algorithm we are using. So what is CPU scheduling is? It is a process by which we are able to determine that who will be going to have the CPU, who will be owning the CPU for execution. And while the another process is waiting for the execution. So what is the main task of CPU scheduling is to make sure that whenever the CPU remains idle, the OS at least, your OS operating system, at least select one of the process available in the ready queue. जैसे ही आपका कोई भी CPU आप किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं एंड देन it becomes idle, and that time it should not be idle. Our main motive is to never ever let your CPU idle. So we have to allot processes and we have to select those processes from the ready queue. So this is the whole process that comes under the CPU scheduling. Fine. Okay, so what are the types of CPU scheduling? Anyone? See, CPU scheduling is divided into two parts. Although I am damn sure that each and every one of you will be having this idea that CPU scheduling is being divided into two sections. That is preemptive, and the second one is non-preemptive. Now, what is the word preemptive means here? What do you understand by the term preemptive? See, what happens is in preemptive scheduling, your tasks are assigned based upon the priorities. Okay. So because every task must be having some kind of priority associated with it. Like if P1 is of highest priority, its priority is 2, P2's priority is 1, P1 priority is again 1. So who is having the highest priority? 2. Then at first instance, which will be going to be executed by the CPU, that is P1. So we will divide our task based upon the priority. The lower the priority, the task holds for some time. And when it gets resumed, when the higher priority task finishes its execution. Now, what is non-preemptive?
So in non-preemptive, what is happening? CPU has been allocated to some specific processes. Now, what are those specific processes? The process that keeps the CPU busy, which will release the CPU either by switching context or by terminating. It will not hold your CPU to become idle. So basically what happens is in preemptive scheduling that your CPU is switching. It is switching in between the processes, like time sharing. It is not becoming idle at any instant of time. Okay. So this is the only method that can be used on various platforms. This is the only method. Fine. So how you are going to decide when your scheduling is preemptive and when your scheduling is non-preemptive? Anyone, if you are having any kind of idea? You get it? What is preemptive? What is non-preemptive? Now the question arises that how you are going to decide that whether that particular scheduling is preemptive or non-preemptive. So if you want to determine that your scheduling is preemptive and non-preemptive, then you have to take these 4 points into consideration. What are those points? First of all, कोई भी प्रोसेस है आपका, ठीक है, अगर वो स्विच कर रहा है किसी रनिंग स्टेट से, फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट, ठीक है, जब आप यहां देखो कि whenever your process is switching from running state to waiting state, पहली एक कंडीशन. दूसरी, रनिंग स्टेट से कोई भी प्रोसेस किस में आ रहा है? रेडी स्टेट में. सेकेंड पॉइंट. व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? ये तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं. थर्ड पॉइंट, when a process changes from waiting state to ready state. And the last one, जब process finish हो जाए and it gets terminated. अगर ये सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाती हैं तो आप कह सकते हैं that your scheduling is the non-preemptive. Do remember. अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है और इसके अलावा जितनी भी शेड्यूलिंग्स रह गई वो आपकी प्रीएम्प्टिव होंगी, फिर यानी वो प्रायोरिटी होगी. So whenever you are seeing that your process is switching from running to waiting, running to ready, waiting to ready, finish to terminated, then you can say this is the non-preemptive. Because in non-preemptive, we have started about what? We have started that in non-preemptive that what? अभी मैंने बताया आपको. The CPU has been allocated depending upon the switching context, right? Only in preemptive, you will get the priority. So priority मुझे कब मिल रही है? जब मैं इस तरह के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दे रही हूं जिसमें प्रोसेसेस का पूरा एग्जीक्यूशन होना है. Processes are not having a kind of a time stamp कि उतने टाइम स्टैम्प तक ही उन्हें एग्जीक्यूट होना है. No, they are totally dependent upon the priority. If any process is having the highest priority, it will be completed first. It will be finished first.
After that, other processes will be in the execution. But in non-preemptive, there is no such case. There is switching. So there is state change. So what are those state change? Running to waiting, running to ready, waiting to ready, and finish to terminated. तो अगर आपको कभी किसी प्रोसेस में इस तरह से दिख रहा है, it means that particular algorithm that you are implementing, that is your what? Non-preemptive. Okay. Then उसके बाद कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो हमारी बेसिकली यूज होती हैं. So सबसे पहली number 1 is your burst time. What is burst time? Tell me. Or execution time. Anyone? What is burst time? Yes. No one is able to answer burst time. See, it is the time that is required by the process for the complete execution. Okay. If a process is in running state, this is in running state. तो ये रनिंग स्टेट में कितना टाइम लेने वाला है. It's still running. It's starting from a certain time, starting like it started from 10 seconds and it's running up to 200 seconds. So this is the running state. So this is the burst time, that the time required by the process to complete the execution. वो 200 सेकेंड में एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट हो गया. अब ये जरूरी नहीं है that the process has been finished. It could be possible the CPU has been shifted to or switched to another process. But ये जितना इसको लगा इस particular instant में, that would be the burst time. That would be the execution time. Second one, second terminology is your arrival time. What is arrival time here? Don't know? Arrival time is when a process enters the ready state. जब वो आपके डिस्पैचर में आ जाए. The word dispatcher, I will tell you. ये आपको पता होना चाहिए डिस्पैचर क्या है. जैसे ही रेडी स्टेट में एंटर कर रहा है आपका प्रोसेस, दैट वुड बी द अराइवल टाइम. ओके. फिनिश्ड टाइम, थर्ड पॉइंट. व्हाट इज फिनिश्ड टाइम? When the process has been completed, that will be completed and that exited from the system, then you can say yes, this is the finish time of the process. Fine. Now what are jobs here? Fourth point. We all know jobs. These are the programs. But these programs do not have any kind of user interactions. Do remember, if the term job is written somewhere, it means this is totally allocated to or going to be allocated to CPU and there is no further user interaction. This particular job means that has been compiled totally. Now a user cannot be able to interact. Fine. Then what is process? This is the very basic question. Process. So process is used for both job as well as user. Do remember this. Process is, this is the reference that can be used for the job, that can be used for the user, that can be used for any kind of activity, any kind of procedure. Basically, that is the process. Okay. Sixth, IO or CPU burst cycle. What is it?
What is IO or CPU burst cycle? See, this is like how many times, how many times your CPU, Ma'am, yes, ma'am, you are talking now about IO burst cycle or the CPU ones, ma'am? both, Okay, at the same time. yes. This is basically the time that has been elapsed between your CPU activity and your IO activity. Okay, see what will happen is you are having CPU, you are having IO devices, you are having processes that are being executed in the CPU. Now, every processes must be having some kind of IO requirement. So, what is the burst cycle here? This is the basic process execution time that has been occurred when there is a switching between the CPU or to the IO. So CPU times are usually shorter than the times of your IOs. So CPU burst time is something which you can say how much time your process is executing, how much time it is taking for the execution. While IO burst cycle is how much time it is taking for the execution of a resource or handling a resource. Fine. So CPU burst cycle or IO burst cycle, this is the basic time that been elapsed between the switching between CPU and IO switching. Fine. Now these are the some basic terms that we will be using in our scheduling algorithms. Okay. Now, what are the scheduling criterias? Basic criteria. Number one, what you have to do? You have to maximize. On one side, you have to maximize. On another side, you have to minimize. So what you have to maximize? You have to maximize the CPU utilization. Why we are using scheduling? These are the basic points. We have to maximize the utilization of the CPU. We have to maximize the throughput. We know throughput, right? हमने अभी सुबह क्लास में पढ़ा है. What we have to minimize? Turnaround time. We have to minimize our waiting time. We have to minimize our response time. So these are the basic principles that we want to achieve if we are using these scheduling algorithms. Okay. These are the criteria that we have to match. We have to maximize our throughput. We have to maximize the utilization. We have to minimize the turnaround time. We have to minimize waiting time. We have to minimize the response time. So we have to be sure about that why we are doing this, why we want to implement an algorithm. Because what happens is you are having a kind of a bombardment to your CPU of the processes. So how your CPU is going to decide that what kind of a job has to be executed first? So these are the principles that we want, that yes, if you are doing something, please adhere to these principles. I want you to have full utilization. I want you to give me the best throughput. I want you to have minimum turnaround time. So these are the scheduling criteria. Fine. Now each and every one of you is having idea of these terminologies. What is CPU utilization? What is throughput? What is waiting time? What is turnaround time? What is response time? Now, there is a term dispatcher.
that I have earlier. SAD. What is dispatcher? This is a kind of a module that provides the control. And what control? Control of the CPU. Control of the CPU to what? To the processes. It means the dispatcher is doing what? Context switching. I wonder if you don't know these terms. Context switching. But why we are doing this? Why there is a term dispatcher? Because what is happening? Your CPU is switching from one process to another process. So how this switching is happening? This is happening by the help of dispatcher. This is the one. This is the main backbone. So what it is doing? It is helping the CPU. It is helping your processor to switch from one point to the another point. So your dispatcher should be very fast. It should be very fast so that it can run on every context switch. Fine. So switching to user mode, to processor mode, whatever the kind of a switching you want, or you want to switch the location, or you want to load a new program, that all has been done by your dispatcher. So your dispatcher should be very fast and repulsive so that your CPU would not be waiting. CPU should not be idle at any point of time. If your CPU is idle, you are wasting 30 to 50 Ks of money because you have invested this particular amount on your, I think, whatever the laptop or desktop you are using. You are wasting this if your CPU is becoming idle. We don't want. So us case mein, what you have to do, you have to make sure that your dispatcher should be very fast so that context switching should not be a kind of a delay for my process execution. Now come to the scheduling algorithm. What are the types of scheduling algorithms? Yes, everyone knows this. Come on, hurry up. How many scheduling algorithms are there? Tell me. Am I audible? Hello. Yes, Adnan. Tell me any type of scheduling algorithm you know. मैम मैम एक 6 फर्स्ट होती हैं हाँ, कौन कौन सी है बताइए. मैम. एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हम्म. एक शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, हम्म. फिर एक प्रायोरिटी होती है, हम्म. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एसआरटी होती है, एक राउंड रॉबिन होती है और एक मल्टी लेवल क्यू. मल्टी लेवल क्यू. इसके अलावा कोई और है? किसी को अगर लगता है कि रह गई है? फाइन. देखो, यू आर हैविंग 6 types of scheduling algorithm. First come first serve, shortest job first, priority scheduling, this is your shortest remaining time, round robin, and multi-level queuing. Now, first come first serve. This is what? Preemptive or non-preemptive? Tell me. Preemptive. Preemptive, yes. This is the preemptive algorithm. First come first serve. So what वो are प्रायोरिटी पे बेस्ड है ना इसलिए.
वो प्रायोरिटी पे बेस्ड है। लेकिन ये तो दोनों होते हैं ना, हाँ प्रीएम्प्टिव मैम, वो इसलिए मुझे लगा कि प्रिएम्प्टिव भी हो सकता है, नॉन प्रिएम्प्टिव। दोनों हो सकते हैं। हाँ, तो फिर क्यों क्यों इतना कंफ्यूजन है? तुम लोगों को क्लियर क्यों नहीं है फंडास ओएस के? आई थिंक 4th सेमेस्टर में तुम्हारा रहा होगा ओएस, है ना? मैम बहुत पुरानी बात हो गई, पुरानी बात? एक अच्छा, साल पहले की। 1 साल पहले की बात है। सही है। ओके, सी, first come first serve or these types of scheduling algorithm, this is totally dependent upon some criterias, whether it is preemptive, whether it is non preemptive। आपको क्या चीज इसमें मिल रही है उस पे डिपेंड करेगा। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि इट कुड बी नॉन प्रिएम्प्टिव, इट कुड बी प्रिएम्प्टिव, टोटली डिपेंडेंट अपॉन किस तरह की जॉब आपके पास आ रही है और उसके साथ एसोसिएशन क्या है, क्या प्रायोरिटीज आ रही हैं उसके साथ में, क्या कुछ और हमारे पास में कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो ये डिपेंड करता है हमारा। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS फुल फॉर्म सबको पता है, सबसे सिंपल है, वेरी सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, सिंपलेस्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ओके, इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास जॉब्स आती हैं, टेबल आ रही है कोई एक, प्रोसेसेस लिखे हुए हैं, P1, P2, P3, P4, अराइवल टाइम लिखा हुआ है, मान लीजिए 0 सेकेंड पे 1, 2, 3, एग्जीक्यूशन का टाइम लिखा हुआ है, बर्स्ट टाइम लिखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी आपका टाइम ले लीजिए, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6, 2, 1। अब डिपेंड क्या कर रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे अराइवल टाइम, किस टाइम पे कौन सा जॉब आया उसको आप एलोकेट कर दोगे। So the process which request the CPU first will get the CPU first. This is the main motive behind FCFS. Fine. इसमें हम क्या मैनेज करते हैं, क्यू की फॉर्म में मोस्टली। ठीक, ये क्या लिखा मैंने, क्यू की फॉर्म में। ठीक, सो जैसे ही आपका प्रोसेस रेडी क्यू में आया, पीसीबी का नाम सुना है किसी ने? व्हाट इज पीसीबी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो नहीं है। व्हाट इज पीसीबी? दिस इज योर प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक। ये लिंक होता है आपका जो क्यू आप मेंटेन कर रहे हो। सो जैसे ही आपका पीसीबी के अंदर डेटा एंटर होना शुरू होता है, सीपीयू एलोकेशन जो है वो कहाँ से होता है, पीसीबी में। पीसीबी इज कंट्रोलिंग दीज पर्टिकुलर, जो मैं टेबल यहाँ बना के आपको दिखा रही हूँ, बेसिकली ये टेबल पीसीबी की है, आप ये समझिए। तो यहाँ से आप जो है एलोकेशन करते हो सीपीयू का। जैसे ही सीपीयू फ्री हुआ, जैसे ही पहला प्रोसेस खत्म हुआ, इट शुड बी असाइंड बाय द न्यू प्रोसेस। तो ये हमारा किस में होता है, पीसीबी में। तो ये हमारी FCFS हो गई। इसे और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा है खास। हालांकि बहुत ही परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं FCFS की, तो मेरी CPU परफॉर्मेंस पुअर रहती है इस केस में, क्योंकि वेटिंग टाइम ज्यादा है। एक प्रोसेस जब तक खत्म नहीं होता दूसरा शुरू नहीं होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सबसे पहले मान लीजिए आपका प्रोसेस अराइव हुआ जिसमें आपको 250 सेकेंड्स चाहिए, दूसरा प्रोसेस अराइव हुआ है जिसे 2 सेकेंड ही चाहिए। नाउ 2 सेकेंड वाला प्रोसेस जो है P2 विल वेट फॉर 250 सेकेंड्स जस्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज 2 सेकेंड प्रोसेस। सो दिस इज द वेरी मच ड्रॉबैक। तो परफॉर्मेंस इसमें बहुत ज्यादा पुअर होती है, एंड जनरल वेटिंग टाइम is very much higher. Why general waiting time is higher? I just gave you the example. Now, अब इससे कुछ अच्छा सा देखते हैं और क्या अच्छा हो सकता है. So that is your shortest job first. What is shortest job first here?
This is very closest in the competition of FCFS. इसमें बस क्या है, जो आपका प्रोसेसेस हैं, जो आपके प्रोसेसेस आपको मिल रहे हैं, उन प्रोसेसेस के अंदर मुझे क्या हो रहा है, जो सबसे छोटा प्रोसेस है, जिसका अराइवल टाइम कुछ भी हो, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, मैं उसे प्रायोरिटी दूंगी और मैं क्या करूंगी कि एग्जीक्यूशन करवा दूंगी अपना। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है P1, P2, P3, 10, मैम 15, यस। मैम सो वेटिंग टाइम की जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी, बस मैम अब कंडीशन बदल गई ना, बाकी वेटिंग तो अभी भी बाकियों को करनी होगी ना, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा भी हो, चाहे टाइम बिल्कुल ज्यादा लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आ रहे हैं इस पे। सी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में मेरे पास ये जॉब्स हैं P1, P2, P3। बर्स्ट टाइम दिए हुए हैं 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स। अराइवल टाइम है 0, 1 एंड 1। तो व्हाट विल हैपन इज कि सबसे पहले CPU एलोकेट हुआ। अब क्योंकि जीरोथ पे सबसे पहले मेरे पास पे क्या आ गया, 10 आ गया, मतलब सॉरी P1 आ गया। सो क्या होगा, P1 को एलोकेट हो जाएगा 0। कब तक चलेगा, ऑब्वियस है 10 तक चलेगा, बिकॉज अभी मैं ये लेके चल रही हूँ कि दिस इज व्हाट, प्रीएम्प्टिव। ठीक है। अब क्या हो रहा है, फर्स्ट इंस्टेंस पे इसको कौन से मिले, P2 भी मिला और P3 भी मिला, दोनों के बर्स्ट टाइम डिफरेंट है। शॉर्टेस्ट किसका है, 8 का। तो अब ये क्या करेगा, अब दे देगा P2 को, दैट इट विल एग्जीक्यूट। यहाँ क्या हो गया 18, और फिर आपका P2 एग्जीक्यूट हो गया, तो ये हो गया 23। इस तरह से शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट काम करेगी। सो यहाँ पे चेंज क्या हुआ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या था कि पहले इसको मिल जाता, दूसरा इसको मिल जाता, तीसरा इसको मिल जाता, दोनों सेम टाइम पे है। तो दोनों में से जो सबसे पहले और रहा होगा, मिली सेकेंड्स देख लें या जो भी रहा है, अगर मैं देखूं तो आप इसको दे सकते हैं, सबसे पहले से मिल जाता है FCFS में। शॉर्टेस्ट जॉब में अगर सेम अराइवल टाइम है तो हम क्या देखेंगे, बर्स्ट टाइम देखेंगे। जो भी मिनिमम रहेगा, we will opt for that, the CPU will be allocated to that particular job, that is your shortest job। ठीक है। देन उसके बाद आपकी आती है, हाँ इसमें यस दोनों हो सकते हैं, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव, जिस भी तरह की आपको कंडीशन मिली हुई है। अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे अभी ऋत्विक ने पूछा, तो यस FCFS से आपका जो, अगर मैं टोटल एग्जीक्यूशन टाइम देखूंगी तो वो सेम रहेगा। वेटिंग टाइम वुड बी डिक्रीज्ड फॉर सम ऑफ द प्रोसेसेस, कुछ प्रोसेसेस के लिए वेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप सिग्निफिकेंटली देखें कंपेयर करने के बाद, तो कुछ रिडक्शन आपको मिलता है एवरेज वेटिंग टाइम में, क्योंकि कुछ प्रोसेसेस का टाइम कम हो जाएगा। बट यस डेफिनेटली जो होल एग्जीक्यूशन है तो वो आपका उतना ही रहेगा जितना FCFS का था। और इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और ऐसा खास है पॉइंट जो उसमें बताना चाहिए। अगर आप बैच शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं, मतलब बैच प्रोसेसेस के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, आपको पता होगा व्हाट इज बैच प्रोसेसेस, तो उस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी SJF यूज की जाती है। जिस भी बैच का सबसे कम टाइम है, हम उसको पहले CPU एलोकेट कर देते हैं। बैचेस तो पता है, सेम तरह के ऑपरेशंस के आप बैच बना देते हैं। जैसे मान लीजिए 2+2 है, कहीं पे 4+6 है, तो एडिशन के आपने बैचेस बना दिए।
कि जितने भी एडिशन परफॉर्म होना है वो एक बैच में, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होना है वो एक बैच में। तो बैच वाइज अगर मैं बात करूं तो एसजेएफ मोस्टली हमारी सक्सेसफुल रहती है। देन नेक्स्ट इसमें कौन सी हो गई हमारी, फर्स्ट कम फर्स्ट हो गया, शॉर्टेस्ट जॉब हो गया, प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है, बेसिकली इसमें अब हमारे पास में टेबल में क्या आएगी, एक कॉलम होता है प्रायोरिटी का, P1, P2, P3, it could be your arrival time and this is the priority। मान लीजिए इसकी प्रायोरिटी हाई करते हैं, इसकी लो करते हैं, इसकी लो करते हैं। Although the arrival time is 0, फिर भी उसकी प्रायोरिटी लो है अभी। चलो पहले बनाना शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, 0th पे P1 आया, एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, ठीक है। बर्स्ट टाइम भी लिखा होगा, बर्स्ट टाइम नहीं तो आपको और कंडीशन गिवन होती हैं, मान लीजिए सबका 1-1 सेकेंड है, 0 to 1। अब 1 पे क्या हुआ, मान लीजिए इसे भी अराइवल टाइम इसका मैं 1 कर देती हूँ, दोनों का सेम अराइवल टाइम पे P2 भी आया और P3 भी आया। बर्स्ट टाइम इसका 2 कर देते हैं, इसका 1 कर देते हैं, लेकिन प्रायोरिटी इसकी हाई है, तो उस केस में सीपीयू किसे एलोकेट होगा, आपके P2 को एलोकेट हो जाएगा। और फिर इसका एग्जीक्यूशन क्योंकि 2 है तो हम इसे यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया आफ्टर एग्जीक्यूशन, एंड देन P3 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी यू आर असाइनिंग द सीपीयू। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मेरी प्रायोरिटीज बहुत ज़्यादा हायर होती हैं, मुझे असाइनमेंट्स ऐसे करने हैं जिनकी प्रायोरिटीज हायर हैं, तो उस केस में मैं हायर प्रायोरिटी को पहले परफॉर्म करवाती हूँ। अगर जॉब्स की इक्वल प्रायोरिटी होती है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 और 1 है और अराइवल टाइम सेम हो, अब उस केस में क्या करेंगे, क्या कोई बता पाएगा? अगर आपकी प्रायोरिटी सेम है, अराइवल टाइम सेम है, तब आप क्या करोगे? देन यू विल बी यूजिंग ईदर राउंड रॉबिन और FCFS, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है किसी भी प्रोसेस की, बेस्ड अपॉन द मेमोरी, कि मेमोरी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बेस्ड अपॉन द टाइम कि एग्जीक्यूशन टाइम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बेस्ड अपॉन योर थ्रूपुट कि क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आपकी प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है किसी भी एक प्रोसेस की। तो ये था आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। नेक्स्ट आता है मेरा राउंड रॉबिन। एवरीवन नोज राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन is nothing but the kind of a circular motion which is driven by the clock। मुझे लगता है आप लोगों को ये पता होगा, ऐसे टीचर्स डायग्राम्स बना के याद करवाने के लिए बनवाते थे, क्लॉक बनाई और एरोज बनाए, कुछ कुछ चीजें। क्यों? क्योंकि राउंड रॉबिन के अंदर बेसिक फैक्टर क्या है, वो है टाइम का। आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, स्लाइसिंग मिलेगी कि मेरे पास में टेबल है, टेबल के साथ मुझे टाइम अलॉटेड होगा कि मुझे हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कितना टाइम देना है, ये हमेशा अलॉटेड रहता है, ठीक है। तो ये हमेशा क्लॉक ड्रिवन रहेगा। सबसे पहला मिनिमम स्लाइसिंग की जाती है इसके अंदर, यानी ऐसा नहीं है कि आपको अलॉटमेंट मिला
तो आपका सबसे पहला अलॉटमेंट ही 10 सेकेंड्स का हो गया। नो, स्लाइसिंग हमेशा मिनिमम रहेगी। तो मैं जो भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करवाना चाह रही हूँ उनकी स्लाइसिंग मिनिमम होगी, कुछ इस तरह से। इतनी भी मिनिमम नहीं कि 1 सेकेंड हो, बट यस ज्यादा नहीं रहती, मिनिमम रहती है। आप लिमिटेड टाइम, स्पेसिफिक टाइम में ही उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे P1 एग्जीक्यूट करना है, मैं सबसे पहले उसे वो अलॉट करूंगी, टाइम अप, नेक्स्ट टू P2, नेक्स्ट टू P3, फिर अगेन P1, फिर अगेन P2, फिर अगेन P3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द राउंड रॉबिन टेक्निक। जब भी हम इस वर्ड का यूज करेंगे, it means they are using round robin technique. मल्टीटास्किंग अगर हो रही है तो वो राउंड रॉबिन से ही होगी। और ये किस में हेल्प करती है एल्गोरिथम? एक और चीज में हेल्प करती है। एनीवन? रियल टाइम स्विचिंग हो रही है ना यार, किसमें? मैम कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है ना, बार बार P1 हाँ, बार 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 आ रहा है। कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। दूसरा रियल टाइम में जो भी आपकी रियल टाइम्स की प्रॉब्लम है, दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन राउंड रॉबिन। ये ध्यान रखना कि एक तो मल्टीटास्किंग में और रियल टाइम प्रॉब्लम्स जो हैं आप उन्हें राउंड रॉबिन से ही सॉल्व कर सकते हो। आप चाहे कोई एल्गोरिदम यूज करो, बट एट द एंड यू हैव टू सी द परफॉर्मेंस। जिस एल्गोरिदम की भी परफॉर्मेंस बेटर होगी आप उसे आने वाले फ्यूचर में यूज करेंगे। सो राउंड रॉबिन जो है वो मोस्टली इन 2 एरियाज में यूज की जाती है। देन आता है आपका मैम इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है राउंड रॉबिन का, अगर मतलब हमें पूछे? डिसएडवांटेज हम ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत मेजर डिसएडवांटेज मिल जाएगा मुझे एज कंपेयर टू अदर, बिकॉज मेरे पास में जो दूसरी एल्गोरिदम्स हैं वो उस लेवल का मुझे जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही कि जो मुझे राउंड रॉबिन से मिल रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं, जैसे नॉर्मल भी अगर आप डिसएडवांटेज की बात कर रहे हो तो जो आउटपुट है प्रोसेसर का वो बेसिकली थोड़ा रिड्यूस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि किसी भी एग्जीक्यूशन को वो परफॉर्म कर रहा है इन पार्ट ऑफ स्लाइसिंग। सो आउटपुट कब होता है किसी प्रोसेसर का? जब वो पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, एग्जीक्यूशन पूरा फिनिश्ड हो जाए। तो वो फिनिश्ड कब हो रहा है? जब उसकी टर्न आएगी नेक्स्ट, तब वो फिनिश हो रहा है। और अगर दोबारा आनी है तब वो फिनिश्ड हो रहा है। तो प्रोसेसर का आउटपुट थोड़ा सा यहाँ लो है। देन उसके बाद बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है तो उसमें भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ये बस हो गया, हमने कहा कि हाँ P1 टू P2 आ गए, P2 टू P3 आ गए, फिर P3 टू P1 आ गए। इसमें टाइम लगता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में। जितना टाइम यहाँ बीच में डिले लग रहा है स्विच करने में, उतना P1 को वेट करने में भी लग रहा है कि मुझे नेक्स्ट एलोकेशन कब मिलेगी। तो वो वेटिंग टाइम बढ़ रहा है मेरा। प्रायोरिटीज इसमें आप सेट कर सकते हो राउंड रॉबिन के अंदर। तो जब आप प्रायोरिटी सेट कर देते हो तब भी दिक्कत आती है। तब उस केस में क्या होता है, मान लीजिए P1 की प्रायोरिटी हाई कर दिया आपने, नाउ एवरी टाइम द P1 is executing, other ones are waiting, still they are using round robin, but every time it is switching back to P1. तो ये कुछ ऐसी डिसएडवांटेजेस हैं दैट कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज मेरे पास में कोई और अच्छा ऑप्शन अभी तक नहीं है। और मुझे जिससे कंपेयर करना है FCFS, SJF, मैं उनसे ऊपर उठ चुकी हूँ, वो कंपेयर करने लायक नहीं रही। तो इसीलिए ऐसी कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस नहीं है इस पर्टिकुलर की। देन बात करते हैं मल्टी लेवल। व्हाट इज मल्टी लेवल क्यू? क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई एक रेडी क्यू है, ठीक है। रेडी क्यू को मैं
सेपरेट करती हूँ वेरियस सेक्शंस में मल्टी लेवल क्यू में। जैसे मान लीजिए कोई भी मेरी रेडी क्यू है, मेरे प्रोसेसेस रेडी बैठे हैं, P1, P2, P3, these are the 3 processes which are ready for the execution। अब मैंने क्या किया, प्रायोरिटी सेट की है कोई। प्रायोरिटी के बेसिस पे मैं क्या करूंगी, डिवाइड कर दूंगी कि ओके मान लीजिए बहुत सारे आपके प्रोसेसेस हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं, तो ठीक है 1 किसकी प्रायोरिटी है, मैंने उन्हें अलग क्यू में कर दिया, P5 एंड P2 मान लीजिए। दूसरा क्यू मैंने बना दिया P4 एंड P1 जिनकी अलग अलग प्रायोरिटीज हैं। तो मल्टी लेवल क्यू में मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटीज मैं डिवाइड कर रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट क्यू में, और फिर ये पूरा का पूरा क्यू जो है अलग से प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, वो भी डिपेंडिंग अपॉन कि क्या प्रायोरिटी है। तो इसकी प्रायोरिटी हाई है तो सबसे पहले P5 को दे देंगे और P2 के दे देंगे, उसके बाद में P4 और P1 का नंबर आएगा। उसमें भी आप फिर देखोगे कि बर्स्ट टाइम कितना है, कौन सी टेक्निक के साथ आप यूज कर रहे हो। तो ये मल्टी लेवल का हो गया। अब इसके अंदर क्या है, जो भी आपकी क्यू है हर एक क्यू पे सेपरेट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स लगेंगी। हो सकता है इस पे कुछ और लग रही हो सकता है इस पे कुछ और हो, इस पे कुछ और हो। दिस इज अ काइंड ऑफ ए शेड्यूलिंग टेक्निक जिसमें आपने डिवाइड किया है। अब आप डिवाइड करने के बाद फर्दर डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्यूज पे, लेकिन प्रायोरिटी इसमें जरूर रहेगी। विदाउट प्रायोरिटी यू वुड नॉट बी एबल टू डिवाइड योर पेरेंट क्यू इनटू चाइल्ड क्यूज। सो दिस इज द multi-level queuing approach. Now, purpose of these scheduling algorithms. मैम इसमें एक मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग भी होती है। आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलना। मल्टी लेवल में क्या होता है, मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग भी होती है एक। मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग इसी का ही दूसरा वर्जन है, ठीक है। उसमें क्या होता है, थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है वो। आप क्यूज जो हैं बेसिकली एक स्टारवेशन वर्ड होता है। स्टारवेशन का मतलब पता है, यस मैम, मतलब रिसोर्स नहीं मिल रहे, रिसोर्स नहीं मिल रही। यस बिल्कुल, 1 मिनट होल्ड रखो। हाँ जी सर, हेलो हेलो। आईटी के 4 बच्चे हैं ना सर? हाँ उन्हीं का आज ही इन्हीं के साथ है, 100 बच्चे हैं ना टोटल। हाँ 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 ओके ओके ओके। क्या बोल रही थी मैं, हाँ मैं फीडबैक क्यों बता रही थी। उसमें क्या होता है कि जो आपके ये प्रोसेसेस है ना, जैसे ये एक प्रोसेस बनाया P1 P4 का क्यू बन गया, दूसरा बना P5 P3 का। तो इसमें क्या होता है, मल्टी लेवल क्यू में तो आपने डिवाइड कर दिया। फीडबैक के अंदर क्या आ जाएगा कि ये प्रोसेस यहाँ से उठ के यहाँ आ सकता है बड़े आराम से। तो कब आ सकता है, जैसे मान लीजिए कभी स्टारवेशन की कंडीशन आने वाली है, उसको ब्रेक करने के लिए आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हायर प्रायोरिटी वाले क्यूज जो है वो चलते ही रहते हैं, लोअर प्रायोरिटी के एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमने क्या किया, फीडबैक लगाया इसमें लूप, कि भाई वेटिंग टाइम कितना है किसी एक क्यू का चेक करो। क्या वो बार बार वेट ही तो नहीं कर रहा, हर बार हो सकता है वो वेट में ही जा रहा है, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा। तो हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस को मूव करवा देते हैं हायर प्रायोरिटी क्यू में, तो उनका वेटिंग टाइम कम हो जाता है। तो ये इसका एक एडवांस्ड वर्जन है मल्टी लेवल क्यू का, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। बस और कोई इसमें खास ऐसा डिफरेंस नहीं है। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इज why we are doing this, what is the purpose behind these scheduling algorithm। तो पहला पॉइंट, कोई अगर आपसे पूछता है
कि why we need to apply all these algorithm. तो सबसे पहला efficiency, 3-4 वर्ड जो हमें लगता है हर जगह हम यूज कर सकते हैं कि efficiency मुझे इम्प्रूव करनी है, बेटर बनानी है. ठीक. अब resource allocation. Whenever you are talking about OS, you always talk about resource allocation. Resource allocation ठीक से होना चाहिए. तीसरा जो हर जगह हम यूज कर रहे हैं, CPU maximum, utilization. yes, हर जगह यूज कर रहे हैं, maximum utilization. Next, all processes should be ready. ये भी एक पॉइंट है मेरे हिसाब से कि सारे के सारे प्रोसेसेस हमारे रेडी होने चाहिए ताकि जैसे ही सीपीयू फ्री हुआ वो एग्जीक्यूट हो जाए. सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड ऑल दीज शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स. तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए. शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सबको समझ में आ गया है. हमने सारी कर ली. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, मल्टी लेवल और मल्टी लेवल फीडबैक की भी हमने बात कर ली. ठीक है. तो इतने उसमें अगर किसी को कोई डाउट है कि हाँ इस शेड्यूलिंग में मुझे ये नहीं समझ में आया, नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग पेजिंग. व्हाट इज पेजिंग, पेजिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जो इसमें एल्गोरिदम्स यूज होती हैं पेजिंग में आपकी, LRU एंड ऑल. ठीक है. हम पेजिंग के बारे में पढ़ेंगे. इसके अलावा तुम्हें लगता है कोई टॉपिक कि मुझे OS में कवर करना है, बिकॉज वी वांट कि एटलीस्ट यू विल बी एबल टू राइट 4 सब्जेक्ट्स इन योर रिज्यूमे. वो 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? दैट वुड बी दी मेजर सब्जेक्ट्स, DBMS, OS, CN, एंड द फोर्थ वन वुड बी और कुड बी oops के कॉन्सेप्ट्स आप लिख सकते हैं उसमें. ये ऐसे सब्जेक्ट है कि इफ यू आर हैविंग अ टैग ऑफ एन इंजीनियर in front of your name, then you should be aware about these subjects. You must be wondering ki how I am able to tell you about DBMS as well as CN as well as OS. सब आप नहीं एक साथ कर सकते, but you must be having an idea. आप आइडिया सबका रख सकते हो. That one should not be able to make a fool of you. पागल नहीं बनाए कोई आपका. आप कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर बनने वाले हैं, हो गए ऑलमोस्ट. यू आर एट द लास्ट स्टेप. तो ये सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए मेरे हिसाब से. बाकी आपको अगर कोई और लगता है देन डू लेट अस नो. वी विल बी डूइंग आवर बेस्ट फॉर यू पीपल. ओके, सो लेट मी टेक योर अटेंडेंस.